Good morning students. Our today's topic is sermons in cats. देखो sermons means there are some knowledge which we gain from the cat. Sermons basically उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपदेश कि बिल्लियाँ जो होती हैं what उपदेश they will give to the human beings. Now this chapter is basically an extract है ये, ठीक है. एक्सट्रैक्ट है एक जो बहुत बड़े राइटर हैं दैट एल्डस हक्सली. उनके कुछ उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ बुक्स लिखी हैं. उनमें एक बुक है म्यूज़िक एट नाइट, ठीक है. और ये जो चैप्टर है हमारा इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट बुक ओनली. Now we will start with the chapter. I met not long ago a young man who aspired to become a novelist. ठीक है. बेसिकली यहाँ जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कहना चाह रहे हैं दैट I met a person who just want to become a novelist. Knowing that I was in the profession, he asked me to tell me how he should set to work to realize his ambition. And he was very well known that I am also in this profession, and that's why he asked me about this. Asked me कि किस तरह से how to achieve our goal, how to fulfill और how to realize his ambition. I did my best to explain. मैंने अपनी जो यहाँ पे ऑथर है वो कहते हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया to explain him. I said is the first thing I said is to buy quite a lot of paper, a bottle of ink and a pen. After that you merely have to write. The first thing I said to him, that young person, that first of all you have to buy some lot of papers, some bottle of inks as well as pen, and after that you merely have to write. But this was not enough for my young friend. But this is obvious सी बात है कि ये उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता. सिर्फ इतनी सी चीज़ें किसी को बता देना कि तुमको नॉवलिस्ट बनना है तो यू हैव टू बाय अ पेपर, पेन और इंक, दैट इज़ नॉट enough. He seemed to have a notion that there was some sort of esoteric cookery book full of literary recipes which you had only to follow attentively to become a Dickens, a Henry James, a Flaubert, and according to taste, as the authors of recipe says, when they come to the question of seasoning and sweetening. देखो, अब वो क्या कहता है, ही सीम्ड टू हैव अ नोशन दैट देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ एसोटेरिक, ठीक है. ही सीम्स टू हैव एन आइडिया, ही सीम्स टू हैव अ बिलीफ और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग दैट क्या, दैट देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ एसोटेरिक, देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ person who likely to be understood or enjoyed by only a few people with a special knowledge. ठीक है. लाइक कुकरी बुक, जो उसने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कुकरी बुक का, जो क्या होती है, दैट इज़ फुल ऑफ बहुत सारी उसमें रेसिपीज़ होती हैं एंड विच यू जस्ट हैव टू फॉलो अटेंटिवली टू बिकम अ डिकन्स. डिकन्स मीन्स बेसिकली यहाँ पे बताया गया टू बिकम अ गुड शेफ, ठीक है. इट इज़ द नेम ऑफ शेफ. अ हेनरी जेम्स, अ फ्लॉबर्ट, दीज आर द नेम्स ऑफ chef. But according to the taste, as the authors of recipes say, when they come to the question of seasoning and sweetening, ठीक है. But according to the taste, it may vary from chef to chef. Now, wouldn't I let him have a glimpse of this cookery book? I said I was sorry, but that unhappily, for what an endless amount of time and trouble it would save. I had never ever seen such a work. Now what happened? Wouldn't I let him have a glimpse of this cookery book? यहाँ पे जो ऑथर कहते हैं that I have not made him a glimpse of a look at this cookery book. I said I was sorry. ठीक है. I simply said that I was very much sorry for that, but that I had never seen such a work. Now the author is saying that इस तरह का कॉन्टैक्ट टू दी, जो ये लोग ड्रामेटिस्ट होते हैं, जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, गो एंड कॉन्टैक्ट विद देम, दे डेफिनेटली हैव सच टाइप ऑफ स्टोरीज. बट इवन दिस वाज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द यंग मैन. लेकिन ये जो यंग मैन था, इस बात से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है. डिसअपॉइंटेड इन हिज होप दैट आई वुड गिव हिम द फिक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ
100 ways of cooking eggs, he began to cross examine me about my methods of collecting material. ठीक है, अब वो क्या हो चुका है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका है. वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द ऑथर. दैट्स वाई आई वुड गिव हिम द फिक्शनल इक्विवेलेंट. फिक्शनल इक्विवेलेंट मतलब एक कहानी जो मिलती जुलती है, लाइक कि ऑफ हाउ टू मेक 100 वेज ऑफ कुकिंग एग्स. ठीक है, इस तरह से. ही बिगेन टू क्रॉस एग्जामिनिंग मी बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस कि ये मटेरियल कैसे कलेक्ट किया. डिड आई कीप अ नोटबुक और अ डायरी डेली जर्नल. ठीक है, वो मुझसे अगेन एंड अगेन ही यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस. डिड आई जॉट दी थॉट्स एंड फ्रेजेस इन दी कार्ड इंडेक्स. मतलब वो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए एक बेस्ट नॉवेलिस्ट बनने के लिए. वेदर आई हैव टू, जो इधर उधर से मटेरियल होता है वो कलेक्ट करना चाहिए, एक नोटबुक रखना चाहिए या एक जर्नल रखना चाहिए. ठीक है, जो मुझे थॉट्स और जो फ्रेजेस मिलते हैं इधर उधर से वो मुझे एक कार्ड इंडेक्स पे कलेक्ट करके रखना चाहिए. ठीक है. डिड आई सिस्टमेटिकली फ्रिक्वेंट द ड्राइंग रूम ऑफ द रिच एंड फैशनेबल. मतलब जिस तरह के लोग मुझे अपने फिक्शन में दिखाने हैं, क्या मुझे वैसा किरदार खुद बनना पड़ेगा. ये सारे क्वेश्चंस. डिड आई थिंक it was wise to frequent the company of intellectuals. Was it a good thing for a writer novel to try to be well educated, or should be confine his reading exclusively to other novels. ठीक है, इस तरह के जो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उस यंग मैन के दिमाग में आ रहे हैं. एंड सो ऑन. आई डिड माई बेस्ट टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस. और मैं क्या करता हूँ, जो ऑथर है वो कहते हैं दैट आई एम रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस अप टू माई बेस्ट, कि जितना बेस्ट मैं उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूँ मैं कर रहा था. ऑफ कोर्स एज आई कुड, एज द यंग मैन स्टिल लुक्ड रैदर डिसअपॉइंटेड. बट जैसा मैं उसको आंसर कर रहा था, स्टिल शी लुक्स टू बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय द आंसर्स गिवन बाय मी. एंड आई वॉलंटियर्ड अ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस gratuitously. Now finally I have given him a final piece of advice, and what I said, look into your books. My young friend, I said, my young friend, if you want to be a psychological novelist and write about human beings, the best thing you can do is to keep a pair of cats. अब वो कहते हैं कि अगर तुमको साइकोलॉजिकली लोगों की साइकोलॉजी को समझते हुए you have to write a novel on human beings, then you must keep the pair of cats. And with that I left him. और बस इस चीज़ के साथ मैं उसको उसके सवालों के साथ छोड़ देता हूँ. I hope for his own sake that he took my advice, for it was good advice, the fruit of much experience and many meditations. ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एडवाइस है it will definitely will help him, that he took my advice and it was a good advice. This advice is basically the fruit, हम कह सकते हैं ना कि this advice is basically the essence of various experiences जो मैंने अपनी लाइफ में experiences किए हैं. This advice is basically the end result of that. But I am afraid that being a rather foolish young man, he merely laughed at what he must have supposed was only a silly joke. Laughed as I myself foolishly laughed when years ago that charming and talented and एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन. नाउ अब वो कहते हैं कि एट दैट टाइम आई फेल्ट कि भाई अगर मैंने उसको एडवाइस दी है तो दैट टाइम ही वेरी मच लाव्ड एट दैट those words of mine which I had given to him. And but finally after years ago that charming and talented and extraordinary man, Ronald Fairbank. अब ये जो एडवाइस है, it has been given to me years ago by a very much charming as well as extra talented man, that is Ronald Fairbank. Once told me that he wanted to write a novel about life in Mayfair and so was just off to the West Indies to look for copy among the Negroes. उन्होंने मुझसे एक टाइम पे ये कहा था that he has to write a novel on the life of human beings, that is life in Mayfair, जो वेस्ट इंडीज़ की बात है. ठीक है, आई लव्ड एट हिम. ठीक है, इन द सेम मैनर जैसा कि आज वो यंग मैन हंस रहा है, इन द सेम मैनर आई लव्ड एट हिम एट दैट टाइम. बट आई सी नाउ ही वॉज क्वाइट राइट. प्रिमिटिव पीपल लाइक चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर सिंपली सिविलाइज्ड पीपल विद द लिड, सो टू स्पीक. ठीक है, बट
इतने सालों के बाद आज जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट टाइम ही वॉज वेरी मच सीरियस, ठीक है, ही वॉज राइटिंग समथिंग वेरी मच क्लियर विच वॉज वेरी मच राइट। एंड एनिमल्स और जो पीपल्स होते हैं, चिल्ड्रंस एंड एनिमल्स, दे आर जस्ट लिविंग सिंपली सिविलाइज्ड पीपल, ठीक है। So to speak, the heavy elaborate lid mean outward appearance जो होते हैं of manners, conventions, traditions of thought and feeling beneath with each one of us passes his or her existence, ठीक है। उनका ये मानना है that we all are, हम एक तरह से घिरे हुए हैं, ठीक है, हमारी सोशल लाइफ पे हम लोग घिरे हुए हैं। हमें अपना ऊपर का एग्जिस्टेंस कैसा रखना है, कैसे हमें ड्रेसअप होना है, कैसे हमें वेल मैनर्ड बिहेव करना है, यही इट इज़ बीइंग पासेस फ्रॉम वन टू अनदर। दिस लिट कैन बी वेरी कन्वेंशनली स्टडीड इन मे फेयर और पार्क एवेन्यू। और यही कहा गया है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से स्टडी किया गया है इन दी बुक मे फेयर और इन दी पार्क एवेन्यू। But what goes on underneath the lid in this polished and elegant district, ठीक है, this is the basically story of some districts, but क्या है जो, ठीक है, ऊपर से तो वी आर बिहेविंग इन अ वेल मैनर्ड, वी आर ड्रेसिंग इन अ वेल मैनर्ड, बट अंडर क्या चल रहा है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनलेस we happen to be endowed with a very penetrating intuition, tells us but little, and if we cannot infer what is going on under other lids from what we see introspectively, वो कहते हैं कि हम किसी का आउटवर्ड अपीयरेंस तो देख सकते हैं, बट what is going inside them we cannot imagine it, we cannot judge it. By peeping under our own, then the best things we can do is to take the next boat for the West Indies, or else less expensively pass a few morning in the nursery, or alternatively, as I suggested to my literary young friend, but a pair of by a pair of cats. तो वो बेसिकली ये बताते हैं कि हाउ कन्वीनियंटली उन्होंने स्टडी किया, जो मे फेयर है या जो पार्क एवेन्यू, दीज डिस्ट्रिक्ट्स को जब वो स्टडी करने बैठे, तो उन्होंने कहा कि लोगों का जो आउटवर्ड एक्सपीरियंस है, अपीयरेंस है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, व्हाट दे फील फ्रॉम इनसाइड, दे बोथ आर दी टू डिफरेंट थिंग्स। एंड इन द सेम मैनर ही आस्क्ड टू, जो जिस यंग मैन को वो वाइट पेयर ऑफ कैट खरीदने के लिए बोलते हैं, कि दैट इज़ द रीज़न कि कोई अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, हम उसको जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वाइट कैट, तो वो बाहर से तो बहुत सुंदर है, ठीक है, ही इज़ हैविंग वाइट, ही इज़ वाइट इन कलर, बहुत ब्यूटीफुल है, बट मे बी इट हैपन्स कि ही विल बी मोर डेंजरस दैन दी ब्लैक कैट, ठीक है, क्योंकि वो जो उसकी इनर ब्यूटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है ना, वो बहुत बुरी है, दैट्स वाई। और जो ब्लैक कैट है, जो ऊपर से दिखने की बहुत डरावनी है, बहुत भयानक है, ही माइट बी अंदर से बहुत सुंदर हो वो, ठीक है, बहुत पोलाइट हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, दैट्स वाई। यस, अ पेयर ऑफ कैट्स, साइमीज बाय प्रेफरेंस, फॉर दे आर सर्टनली द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल द रेसेस ऑफ कैट्स, ठीक है। अब वो यहाँ पे जो स्पेशली उन्होंने जिन कैट्स का जिक्र किया है, दे आर दी साइमीज, ऑल्सो दी स्ट्रेंजर्स, एंड इफ not the most beautiful, they are the strangest and not the most beautiful cats, certainly the most striking and fantastic, for what disquieting pale blue eyes stare out from the black velvet mask of their faces, they are having the, पूरी body उनकी black है, and they are having the eyes like क्या कहते, they are having the most beautiful eyes like pale blue in colors. Snow White at birth, their bodies gradually darkened to a rich mulatto color. Now ये पहली कैट हुई, that was black in color. The second, the pair कहाँ है, तो एक, the first cat must be black, the second one must be white, like Snow White. Their forepaws are glowed almost to the shoulder, their tails, when they have tails, and I would always recommend the budding novelist to buy the tailed variety, for the tail in cats is the principal organ of emotional expression, and a Manx cat is the equivalent of a dumb man. Their tail are tapering black serpents. तो बेसिकली जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो किसी को भी ये एडवाइस देते हैं, किसी को भी मीन्स द वन हु कम टू him just for writing a novel, कि you have to just buy a pair of cat
और अगर उसको देख के चीज़ें समझ में आ गई देन यू विल डेफिनेटली become the good novelist. I hope you all understood it. Thank you and have a nice day.